Okay, so hello, my friends, welcome. So, in this session, we are going to see some questions related to your Indian Post Payment Bank IT officer. So, this is your notification, and here we are having the post of IT Scale 1. There are the 54 post here, and this is all permanent post. तो ऐसा नहीं है कि this is the contractual, and you can see the admit card is also out. So I believe here all you have डाउनलोडेड योर एडमिट कार्ड। तो यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने नहीं किया डाउनलोड? सबने डाउनलोड कर लिया ना एडमिट कार्ड? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इन एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग? प्रियम, यू हैव आल्सो डाउनलोडेड योर एडमिट कार्ड? Oh, yes, sir. Good. So here you can click and always download everything from the official website. So this is the official website, and you have, I believe, you have downloaded admit card. And let's see some questions of the mock test. Then whatever doubts you are having, you can ask. So first, see the network mock test. So you can just unmute and you can just simply speak what is the answer. So the first question which is visible on your screen, in OSI model, what is the main function of the transport layer? Anyone? ABCD? B. B. Okay. Yes, B is the right answer. It is the main, we can say, for process to process message delivery. Here I'm not going to explain. This is your mock test. And second question, this question asked in the ISRO examination of 2015. An acknowledgement number 1000 in the TCP always means that. B. One. Okay, so it means that you have received 999 bytes and the acknowledgement always plus one. So I request please watch the classes of networking theory. In that I have explained this why this is happening. So what you can do in the YouTube, you can visit it and everything I have explained here. So you can go through that, and moving to next question is the answer. The port address in the TCP IP dash bits long. ABC. 16. Okay, yes, it is 16, right? Next question. Okay, so this is the image. This is very important. So if you want, you can take this screenshot also. So here we are having the which are under TCP, which are under UDP, and what is the port number. If you want, you can take the screenshot also. It is important from exam point of view. Moving ahead, next question. So which of the following IEEE standard stand for WiMAX? ऑप्शन नंबर 3 3. Yeah. 3 नहीं 4 होगा, ये 4 में से ही होगा यार, इसका क्या है? 16 3 या 4 में से होगा, देख लेना, मेरे को याद नहीं आ रहा. ओके, आई ऑल्सो गॉट कंफ्यूज. Next question. What does the IP 192.168.0.1 typically represent? it is So C. I will. No, it is a private IP address. Okay, moving ahead. Next question. What is the term of the endpoint in the inter-process communication flow across a computer network? No, it is socket, not pipe. Yes. Who have given the answer socket? किसने आंसर दिया socket सबसे पहले? मतलब जिसने भी आंसर दिया, good. It means your knowledge of networking is good. Okay, so zooming here again. Which topology require a multi-point connection? Bus topology. Yes, right. Bus is right. Next question. What is the max length of the shielded twisted pair cable? 100. 100 meter. Yes. See, you have to be a little bit fast. Next question. Okay, इसका आंसर दिख ही गया क्या इधर? इसका आंसर हटाना पड़ेगा. So T switch is used for, it is for our rearranging the connection between the computing equipment.
Next question. Which of the following is the form of DOS attack? All of the mentioned. All of the above. All of them mentioned, yes. Packet sniffing allow, involve, active, passive, legal, and partially active receiver. Passive receiver. Passive. Yes, it is B. B. Answer B is the right answer. FDDI stands for full form for FDDI. A, B, C, D. C. Option C. ऑप्शन सी A. नहीं ए रहेगा यार ए आंसर होगा A. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन which layer of the OSI model is responsible for end-to-end communication and error recovery? Fourth layer. Fourth layer. Network. No. A answer will be the right answer. जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वही एंड टू एंड देखता है आपका. A is the answer of this question. Next question. IP packet has arrived the first bit as 01000010. Which of the following is correct? D. D होगा. Yes, the receiver is going to reject the packet because this first four represent the IPv4 version and then we have the length of our packet. So it is going to reject the packet. So this image is also important from exam point of view. ये image आप देख लो exam में हो सकता है कि इससे एक आधा question आ जाए. So IPv4 header is very very important. The first four bit represent the version. Then we are having the H length and H length we are having the minimum we are having the 20 bit. I'm sorry, byte. So it should be minimum 20, maximum 60. Then we are having the service total length, identification, and our flag. Then we are having the fragment offset, then TTL. So when your packet go from one router to another router, so TTL always going to decrement. So anyone who can say what is the maximum limit of TTL? It is 255. Okay. Then we are having the protocol 8-bit header checksum. Okay, then we are having the destination and our source IP address. Okay, so this was the short mock test of our networking that we have seen. Now, whatever doubt you are having in your mind, you can unmute and you can ask your question. So whatever doubt you are having in your mind. So before moving ahead, there is one thing that I want to clear you. So if you read the notification carefully, in the earlier also I have told you very very specifically that कहाँ गया आपका सिलेक्शन करते वक्त है यहाँ पे yeah selection process. So this is the thing that I want to highlight here before because before you ask a question. So it is clearly mentioned that the selection will be based on your interview. However, the bank reserve the right to conduct the assessment. मैंने शुरू में आपको बोला था अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट आएंगे ज्यादा तो आपका एग्जाम डेफिनेटली होगा क्योंकि आपकी जो और पोस्ट है उसमें इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट हो सकता है नहीं आए हो बट आपकी पोस्ट के लिए एग्जाम होगा और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एग्जाम होगा बट क्या सिलेबस रहेगा इट इज नॉट मेंशन इन द ऑफिशियल वेबसाइट विच आई हैव सीन इन द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक. यहाँ पे कहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन है एक यहाँ पे इन्होंने एक रिवाइज हैंड आउट मेंशन किया गया था इसके बाद में इन्होंने अपलोड किया था बट जब ये नोटिफिकेशन आया था तब ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं था उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कि लगभग आपका यही सिलेबस रहने वाला है. तो जो चीज मैंने शुरू में आपको बताई थी वही चीज यहाँ पे भी है. नाउ अब आपका ये एग्जाम होगा जो स्टूडेंट का एग्जाम क्लियर होगा दोस्त हु आर एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम. सो रेशियो आपका यूजुअली रहता है 1:3. यूजुअली जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम होते हैं उसमें 1:3 रहता है एक सीट के पीछे 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए 3 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है. अब आपका जो सिलेक्शन अगर सिर्फ इस लाइन को देखें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे होगा. तो अब जिनको बुलाया जाएगा फिर उनका इंटरव्यू होगा और सिर्फ इस लाइन के अकॉर्डिंग सिर्फ सिलेक्शन इंटरव्यू बेसिस पे होगा. अब हो सकता है कि ये हो सकता है कि आपका जो मेंस एग्जाम है उसके मार्क्स भी इंक्लूड करे और इंटरव्यू करके फिर दोनों को मिला के मेरिट लिस्ट निकाल सकते हैं बट ऐसी चीज कहीं भी यहाँ नहीं लिखा है. तो जो भी होता है आपको ट्राई ये करना है कि मैक्सिमम मार्क्स आप अपने एग्जामिनेशन में लेके आओ. उसके बाद इंटरव्यू तो में जो आना होता है वही आता है. वी हैव नो आइडिया हाउ मच मार्क्स वी आर गोइंग टू गेट बट इन द एग्जामिनेशन यू कैन डू योर बेस्ट. नाउ अब आपका ये एग्जामिनेशन है जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज है रीजनिंग है क्वांट एंड योर प्रोफेशनल नॉलेज. तो यहाँ पे देखो तीनों का अलग अलग टाइम दिया गया इंग्लिश का टाइम अलग है रीजनिंग का टाइम अलग है क्वांट का है. तो तीनों में आपको ट्राई ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर आप कर सको इन द स्पेसिफिक एंड
वी कैन से इंग्लिश के अंदर ही आपका सारा एग्जाम रहेगा, तो 120 मिनट्स आपको मिलेंगे। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। तो वन बाय वन यू कैन रेज योर हैंड, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू, अगर आप सब एक साथ बोलोगे। तो सबसे पहले थे प्रियम तिवारी। यस प्रियम, आस्क योर क्वेश्चन। सर एक बार प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस बता दीजिए। देखो, प्रोफेशनल नॉलेज का इन माय ओपिनियन योर IBPS SOIT मेंस और वी कैन से होल बीटेक इज योर सिलेबस, बट you have to give to more attention towards network security. Okay, sir. Okay, thank you. You're welcome. After Prem, we are having Vivek. Vivek, you are here. Yes, I am there. Yes. So, yes, sir. Hi. So, could you please explain about the negative marking system as it was unclear into that handout, right? So, This I have guessed. See, there is no penalty for the wrong answer marked by you. However, you are advised not to mark answer by random guessing. But अब यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई थी, नेगेटिव मार्किंग है कहीं पे, देखा था मैंने 1/4 कहीं लिखा हुआ था। हाँ, मैंने आपका वो पहला वीडियो देखा था, वहाँ पे अनक्लियर था सब, इसलिए मैंने भी थोड़ा रिसर्च देखो, किया, बट इसके लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो जो आपकी स्क्रीन रहेगी ना, उसके ऊपर लिखा रहेगा, जो आपकी स्क्रीन होगी ना, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, उस वहां पे लिखा रहेगा कि आपका किस मार्क्स में कुछ नेगेटिव है या नहीं है। वहां पे अगर एक लाइन साफ साफ लिखी रहेगी दे विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो फिर आप जितने क्वेश्चंस होते हैं सबको अटेम्प्ट करना। अगर वहां पे नेगेटिव मार्किंग लिखी हो तो लिखा रहेगा कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग लिखी रहेगी। तो व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन ऑन in front of you there will be a screen on the इंस्ट्रक्शन, सो इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे, तो वहां पे एक बार आप देख लेना कि नेगेटिव है या नहीं। बट अगर हम यहाँ रीड करते हैं तो यहाँ पे बट दोनों ही अनक्लियर है। बट लेट्स सी होता क्या है, हो सकता है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ना हो। स्क्रीन पे जो इंस्ट्रक्शन आएंगे ना, आप उनको एक बार अच्छे से देख लेना। IBPS SOIT में जो होता है तो वहाँ पे नेगेटिव होती है क्या इसके लिए? पे नेगेटिव होती है, आपकी नेगेटिव होती है 1/4 होती है नेगेटिव। अच्छा अच्छा, ओके। ओके। और यहाँ का मतलब मैक्स कट ऑफ कितना जाता है का कोई गेस? नहीं सर, ये सी द कट ऑफ डिपेंड ऑन द एग्जाम लेवल। अगर एग्जाम लेवल इजी है तो आपका कट ऑफ आ जाएगा, एग्जाम लेवल हार्ड आता है तो आपका जो है कट ऑफ वो ऑटोमेटिकली लोअर चला जाएगा। थैंक यू। वेलकम। Okay, so after that we are having Hitesh Sharma. यस सर। हाय सर, एक्चुअली सर जब हम पेपर जब एप्लीकेशन फॉर्म जब फिलअप कर रहे थे तो उसमें आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी एक ही सेक्शन में था, एक ही पेपर था जो कि अभी 14 फरवरी में होने वाला है। तो फॉर आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी देयर विल बी अ कॉमन पेपर और डिफरेंट पेपर? साइबर सिक्योरिटी, आपने which post you have applied? सर फॉर आईटी ओनली। नो, आईटी में अलग अलग आता है ना यहाँ पे। आपने असिस्टेंट मैनेजर आईटी अप्लाई किया है, मैनेजर पेमेंट सिस्टम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, किसमें किया है? फर्स्ट वाला है असिस्टेंट मैनेजर आईटी। इसमें साइबर सिक्योरिटी क्यों कह रहे हो आप? सर वो एप्लीकेशन में लिखा हुआ था कि एक साइबर सिक्योरिटी एग्जाम में फॉर्म भर रहा था तो उसमें 2 सेक्शन थे, टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी, तो मैंने टेक्नोलॉजी लिखवाया था। इसमें वो पूछ रहा हूँ ना कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर रहे हो या इस वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। दो है ना, टेक्नोलॉजी के अंदर ऊपर के पोस्ट आते, साइबर सिक्योरिटी के अंदर नीचे का आता है। दो ए और बी, दो सेक्शन है। ओके ओके, समझा। फर्स्ट वाला रेगुलर है और बी सेक्शन है जो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। अच्छा तभी। हाँ ठीक है, थैंक यू। वेलकम। Okay, after that we are having way to IIT. You can unmute way to IIT, you are here. सर एक्चुअली सर प्रोफेशनल नॉलेज में तो सर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा मस्कोर हो जा रहा है, बट इन केस ऑफ अबव 3 ये स्पेशली फॉर क्वांट नहीं हो पा रहा मुझसे, मतलब कैसे 35 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहे हैं मुझसे। ये वाले इसकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो हो जाता है इसलिए,
ऊपर ये जो क्वांट एप्टीट्यूड ये नहीं होता मुझसे, यार ये मतलब टाइम इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी। तो दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर फ्रॉम लॉन्ग टाइम, तो जो लॉन्ग टाइम से जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वही स्टूडेंट इसमें अच्छा स्कोर कर सकता है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आपको यहाँ पे बहुत दिक्कत आने वाली है। इसके लिए बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में आपने मन किया निकाल लिया, तो इसमें लगता है, इसमें स्पीड लगती है और इसमें लगता है, टाइम लगता है। इसके लिए अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता कि आप ये कर लो, तो इसमें तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, मीनवाइल अगर आपके पास में हो टाइम, तो जो आईबीपीएस पीओ होता है ना, एक देखो एग्जाम होता है, बैंक पीओ का एग्जाम होता है, आईबीपीएस भी लेता है, तो आईटी आरआरबी का भी पेपर लेता सर है। मैंने वो सीबीएसई दिया है, हाँ, तो अगर जिसने दे रहा हूँ पीओ मतलब का, पेपर। अगर आप मॉक टेस्ट दे लोगे ना, अगर वहां अगर अच्छा स्कोर आ जाएगा तो यहाँ आपका ऑटोमेटिकली स्कोर अच्छा आ जाएगा। ओके सर, थैंक ओके, वेलकम। सो आफ्टर दैट वी आर हैविंग रुपेश। यस रुपेश, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सर इसका मॉक टेस्ट है क्या अवेलेबल आईपीपीटी का? विच रुपेश, थोड़ा वापस बोलेंगे? इसका हाँ मॉक मॉक टेस्ट अवेलेबल है क्या इसका? हाँ, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। सो लिंक आई विल शेयर इन द चैनल, so वेयर यू कैन गो एंड यू कैन गो विद द मॉक टेस्ट। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ओके, और एनी नोट्स और स्पेसिफिक कोर्स? कोर्स यार अभी कोई, आई विल नॉट सजेस्ट कि अभी आप कोई कोर्स लो, क्योंकि एक हफ्ते में कुछ भी कोर्स कोई हेल्प नहीं आप कर सकता। सिर्फ अब आपको सिर्फ रिवीजन ही हेल्प कर सकता है, मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, वही आपको हेल्प कर सकता है। और मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि अभी आप कोई भी कोर्स लो, तो क्योंकि ये यार जो एसबीआईएसओ का जो सिलेबस था वो करेंगे तो कवर हो जाएगा ना प्रोफेशनली के? आप आपका जो बीटेक सीएससी का सिलेबस है उसको आप स्टडी करेंगे तो आपका हो जाएगा, बीटेक सीएससी का, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग पूर्णा साहू। सर सर क्वांट्स एंड एप्टीट्यूड बहुत सिर्फ क्वालिफाई राउंड के लिए यूज होगा, राइट? सर और इसमें ऐसा एक्चुअल कहीं लिखा नहीं है ऐसा कि सिर्फ यही होगा, बट इन जर्नल हम बात करें तो यहाँ पे आपको अलग अलग दिया है टाइम। तो हो सकता है कि सेक्शनल कट ऑफ रहे आपका, और फिर जो आपको मेरिट लिस्ट रहेगी वो हो सकता है कि प्रोफेशनल नॉलेज के हिसाब से आपको बुलाया जाए। तो आपको ट्राई ये करना है कि हर एक सेक्शन में मैक्सिमम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का ट्राई करना है आपको। ओके सर। इन जनरल क्या होता है कि जितने भी हमारे आईटी रिलेटेड पोस्ट होती हैं उसमें इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट तो आता है, बट द मेरिट यूजुअली डिसाइड ऑन द प्रोफेशनल नॉलेज ओनली। ओके पूर्णा। ओके, आफ्टर दैट हितेश शर्मा। हितेश, यस व्हाट इज योर सर, डाउट? सो बेसिकली ये जो सर लाइक अभी अभी खाली 7 days बाकी है, सो हाउ मेनी मॉक टेस्ट विल बी इनफ टू प्रैक्टिस विद इन 7 days अकॉर्डिंग टू यू? एक मॉक टेस्ट बहुत होता है, एक फुल मॉक टेस्ट दो, उसको एनालिसिस करो कहाँ पे आप मिस्टेक हो रहे हो। लेट सपोज यू आर वर्किंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आपके जो नोट्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के किस टॉपिक में, उसको आप एनालिसिस करो। एक दिन में एक मॉक टेस्ट बहुत होता है इफ यू आर वर्किंग, एंड इफ यू आर ए स्टूडेंट, अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हैं, देन 2 मॉक टेस्ट यू कैन गिव इन अ सिंगल डे। ओके सर। यस, एंड सर जो रिवीजन वगैरह होगा तो सबसे पहले सर ऑपरेटिंग सिस्टम डीबीएमएस, एंड देन सर मतलब वेटेज के हिसाब से क्या होगा, सीएन ऑपरेटिंग सिस्टम डीबीएमएस? कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, इन्होंने बस वर्ड लिख दिया प्रोफेशनल नॉलेज। तो एग्जामिनर कैन पुट एनी वेटेज टू एनीथिंग, तो हो सर सकता है मैं कि पास्ट ईयर पेपर्स देख रहा था, तो उसमें सर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन भी आए थे, लाइक गेट्स वाले, नैंड गेट हो गया, एंड गेट हो गया। हाँ, तो तो वो आपका बीटेक सीएससी का रहता है ना, पार्ट रहता है। आपने बीटेक में स्टडी नहीं किया था? बीटेक सीएससी में करा था, बट सर जो वो था लाइक जेके फ्लिप फ्लॉप हो गया, देन मास्टर सेव वाला हो गया, वो सर वो नहीं करा था, वो प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहा था, तो मास्टर सेव वाला मैंने नहीं करा था सर। वो आ सकते हो उस तो टाइप आप उसको स्किप आप कर सकते हो। देखो, अगर आपको के मैप आता है ना, अगर आपको, में? के तो मैप, आप राइट? आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट यूजुअली उन चीजों को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। अब देखते हैं एग्जाम में क्या सिलेबस में आता है, इसका मेरे को भी यार भी फुल आइडिया नहीं है कि कहाँ से क्या और कितना पूछा जाएगा।
Okay, sir. Thank you. Okay, welcome. After that, Shahrukh. Yes, Shahrukh. Hello. सर ये जो एग्जाम हो रहा है तो ये सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए हो रहा है या फिर फाइनल सिलेक्शन में भी इसका वेटेज होगा? क्योंकि इन्होंने पहले तो बोला था कि सिर्फ इंटरव्यू होगा, नहीं नहीं, अगर जरूरत पड़ी इन्होंने तो ऐसा नहीं शॉर्ट बोला लिस्टिंग था। के लिए एग्जाम इन्होंने लेंगे। नहीं बोला था कि सिर्फ इंटरव्यू होगा। जब नोटिफिकेशन आया था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि दोनों चीजें हो सकती हैं, और 90% चांस है कि आपका एग्जाम ही होगा, तभी भी मैंने कहा था। अभी मैं कह रहा हूँ कि आपका एग्जाम होगा। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये फुल्ली डिस्क्राइब नहीं है। अगर हम सिर्फ इसी स्टेटमेंट को देखते हैं, आपके अगर नंबर अच्छे आएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे रहेगा। अभी क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए, बहुत ज्यादा लोग आ गए, तो हर एक का इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स को कम कर रहे हैं, तो उसके लिए अब क्या कर रहे हैं, ये एग्जाम ले रहे हैं। तो जो स्टूडेंट इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मींस अभी मतलब डिसाइडेड नहीं है कि वेदर दे विल कंसीडर द मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। और एक कंफ्यूजन वैसे मैंने ज्यादा, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम ज्यादा नहीं दिया, तो जो सेक्शनल टाइम होता है हम्म, जैसे ईच सेक्शन का 15 मिनट 20 मिनट है ना, तो मान लेते हैं कि अगर एक सेक्शन का टाइम बचा तो वो मैं अगले सेक्शन में यूज नहीं कर सकता हूँ नहीं या? होता। नहीं नहीं, आप उसी सेक्शन को दे सकते हो, नहीं होता। आई रिकमेंड कि आप है ना कोई मॉक टेस्ट दीजिए। आप भी तक कोई मॉक टेस्ट दिया आपने कहीं पे? हाँ, मॉक टेस्ट तो दिया है वैसे। जैसे मैं मान लो एक वेबसाइट बताता हूँ, ऑलिव बोर्ड। यहाँ पे आपको क्या है, हॉलीवुड तो दिया मैंने सर। हाँ ऑलिव बोर्ड ले लो, कोई भी ले लो। जैसे यहाँ पे दिखेगा IBPS SO फिल्म्स मॉक टेस्ट, तो ये फ्री में एक मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको एक्सपीरियंस लग जाएगा। फिर आपका एक IT का होगा, एक मॉक टेस्ट यहाँ देते हैं। अगर अच्छा लगता है सो यू कैन अनलॉक हियर एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। कोई भी वेबसाइट अच्छी लगती है आप रजिस्टर कर सकते हो। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन यूज माई कूपन GG10 तो टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आप कोई भी वेबसाइट पे आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगता है वहां से दे सकते हैं। मैंने जो एप्लीकेशन दी है उस पर अच्छा लगता है तो वहां पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बट ये है कि जो टाइम 15 मिनट इसको अलोकेट है, ये 15 मिनट किसी और को आप नहीं दे सकते हो। ओके, थैंक यू। वेलकम। एंड आफ्टर शाहरुख यू कैन लोअर योर हैंड। जस्टिन, जस्टिन शाहरुख क्वेश्चन हो गया तो यू कैन लोअर योर हैंड। यस जस्टिन, जस्टिन यू आर हियर? नहीं है हेलो देन। हेलो हेलो हाँ, सर। यस। सर मुझे ये पूछना था कि स्ट्रैटेजी क्या रखना चाहिए अटेम्प्ट करने का क्यूआरई में? सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देना चाहिए? देखो यहाँ पे आपका सेक्शनल रहेगा टाइम, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वही चीज आएगी जो आपको स्टार्ट कर सकते हो आप। मेरे हिसाब से एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे आप स्विच नहीं कर पाओगे। ओके सर। अगर वहाँ पे ऑप्शन आता है कि स्विच करना, वैसे नहीं आना चाहिए क्योंकि इन्होंने सेपरेट सेपरेट टाइम दिया हुआ है। तो ये 15 मिनट आप इंग्लिश को दोगे, जब 15 मिनट पूरा हो जाएगा फिर ये सेक्शन ओवर हो जाएगा, फिर दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा आपका। लास्ट में आपका आएगा प्रोफेशनल नॉलेज, अगर हम इस सीरीज को, इस सीरियल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं तो। ओके सर। After that, we are Mr. Bansal. हेलो, गुड इवनिंग सर। Good evening. सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने जो वीडियोस बनाई थी SBI SO का इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ है, काफी बढ़िया हेल्पफुल बढ़िया। रहा वो। हाँ, एंड सर मेरा बस क्वेश्चन एक मेन यही है, इसमें जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट है सर, इसका लेवल मतलब IBPS SO मेंस जैसा रहने वाला है, थोड़ा लाइक डिफिकल्ट लेवल पे, या फिर मतलब आपके हिसाब से वैसा रहेगा SBI SO वाला थोड़ा इजी लेवल पे था नहीं, जैसा? एचबीएस से तो बहुत ही इजी आ गया था, इतना इजी नहीं आना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से यार IBPS SO मान के चलते हैं, IBPS SOIT मेन से थोड़ा सा नीचे रहेगा। मतलब ऐसे रहेंगे कि मतलब कुछ जैसे कुछ शेयर क्वेश्चंस टू वाला एकदम था इजी मतलब रहेंगे। अभी। जैसे अभी अपन ने कुछ देखे थे ना क्वेश्चंस इसके नेटवर्किंग के, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको देखने मिलेंगे जो देखते ही आप उसको टिक लगा सकते हो। बहुत ज्यादा ऐसा कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आता है तो इजीली यू कैन टिक। मतलब मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चन, मतलब आउट ऑफ 50 10 क्वेश्चन विल बी इजी। जैसे क्वेश्चन देखते आप कहोगे यार ये क्या क्वेश्चन, तो आप
फटाफट उसको टिक कर सकते हो। हाँ, कुछ क्वेश्चन हल्के बहुत हाई लेवल के भी रहने वाले हैं। तो सर मतलब यही 7 days में मतलब ये है ना जो मेन थ्योरेटिकल पार्ट जैसे टर्म्स वाले होते हैं वो रिवीजन करना ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन डीप डाइविंग। हाँ, अभी आप सिर्फ मॉक टेस्ट दो और आपने कोई नोट्स बना रखे हैं खुद के, सेल्फ नोट्स, उनको आप रिवीजन करो। ओके, थैंक यू सर। एंड आफ्टर दैट हो गया बंसल। Okay, so I believe I have answered all the doubts whatever you have. So I wish you very all the best for your examination. अच्छे से एग्जाम दे के आना। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका सेंटर आउट ऑफ स्टेट आ गया हो, मतलब कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट आ गया हो सेंटर, ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं है ना जिसका दूसरे स्टेट में आ गया हो एग्जामिनेशन? सबको सेम स्टेट मिला है ना? यस दिव्या, यू आर ऑल्सो है, तो आपका भी सेम स्टेट है ना दिव्या? यस सर। गुड। आशुतोष, आपका भी सेम स्टेट है ना? सर गुड। ओके, सो अगेन nobody having any doubt, किसी और का कुछ क्वेश्चन है, you can ask, otherwise I'm going to end the session. अभी जो एमसीक्यू का है ना नेटवर्किंग का, आप ये पीडीएफ शेयर कर सकते हैं? ये वाले? हाँ मैंने लेट ज्वाइन किया। हाँ, ये वाला अभी मैं भेज दूंगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो 8-10 क्वेश्चन है। तो आप जो मॉक टेस्ट देखोगे ना उसमें खूब सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो आप निकाल। देखो मैं आपको वापस बताता हूँ स्क्रीन शेयर करके। आप है ना ये क्वेश्चन जरूर जरूर देख लेना एग्जाम से पहले, आपको बहुत ज्यादा हेल्प लेने वाली है, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको आपको क्या करना है, यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब को आपको आइडिया होता होगा, यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं। फिर यहाँ पे आपको लिखना है आईटी ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा चैनल, और यहाँ पे आपको जाना है प्लेलिस्ट पे, ठीक है। प्लेलिस्ट पे आप जाओगे, एक ये प्लेलिस्ट है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 40 वीडियोस है। कितने वीडियो? अप्रोक्सीमेटली 40 वीडियोस हैं। ये 40 वीडियोस एक बार आप निपटा लेना सबके सब, 1x स्पीड, 2x स्पीड, 3x स्पीड, जो स्पीड अच्छी लगे उसमें ये 40 वीडियोस आपको जरूर निपटाने हैं, ठीक है। इनमें ये देखने के बाद इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे एमसीक्यू देखना है, जैसे मुझे देखना है डेटाबेस एमसीक्यू। यहाँ पे लगभग 23 एमसीक्यूज हैं, जो हाई लेवल, जो जो क्वेश्चन गेट के अंदर आ चुके हैं, जो क्वेश्चन यूजीसी नेस्ट में है, इसरो के अंदर है, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, इजी लेवल से लेके लो लेवल तक। ऐसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आपको नेटवर्किंग के वीडियोस मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपको खूब सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियोस भी निकाल लेते हो ना, लगभग यहाँ पे 200 वीडियोस होंगे रिलेटेड टू आईटी एमसीक्यू। अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन भी देख लेते हो ना, तो भी आपका एग्जाम अच्छे से जा सकता है। बाकी आप जितने क्वेश्चन अभी देख सकते हो फ्री टाइम में, जब भी आपको टाइम मिलता है, तो आई रिक्वेस्ट अब लास्ट मोमेंट पे कोई इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह मत देखना। लास्ट मोमेंट पे जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, उनको आंखों के आगे से निकालो। हाँ, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। आज तो कुछ पूछना चाहते हो? यस सर। आप पूछो ना। सर मैं पूछा था कि जो क्वांट रीजनिंग का लेवल रहेगा वो आईबीपीएस पीओ वाला रहेगा या फिर क्लर्क मेन? पीओ वाला देने वाला है, पीओ का, बैंक पीओ का रहता है ना, प्री 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 एग्जामिनेशन, मेंस नहीं, प्री एग्जाम, ओके वो रहेगा आपका। ओके, एंड अजय, आपका भी कुछ क्वेश्चन है क्या? सर इसमें जो है, जो मार्किंग स्कीम दिया है इसमें क्या मतलब क्वांट का जो मार्क्स दिया वो पूरा मेरिट बनेगा या प्रोफेशनल का ही, सिर्फ प्रोफेशनल सब्जेक्ट का ही यार वो ऐसा मेरिट? कहीं लिखा नहीं है इन्होंने, इनके ऊपर रहता है कि ये हो सकता है कि सब 150 मिला के आपका निकाले मेरिट, या हो सकता है कि जो प्रोफेशन नॉलेज है सिर्फ उसी का लेके मेरिट निकाल ले। इन जर्नल जो आपके आईटी ऑफिसर्स के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें सिर्फ जो कट ऑफ निकलती इन जनरल, वो आपका प्रोफेशन नॉलेज के हिसाब से निकलती है। अच्छा, सर आपने जो बोला सर क्वांट के लिए, सर कहाँ से करना है? आईबीपीएस पीयू का? हाँ, आप आईबीपीएस पीओ उठा लो, एसबीआई पीओ उठा लो, आरआरबी पीओ उठा लो, सबके सेम ही लेवल रहते हैं, उसके आप मॉक टेस्ट दे सकते हो।
सर मुझे क्वेश्चन पूछना था जो सर क्वांट का जो रहेगा सर वो जैसे बैंक लेवल का रहेगा कि एसएससी लेवल का जैसे बैंक्स में कुछ बैंक स्पेसिफिक का बैंक का एग्जाम क्वेश्चंस है आते तो बैंक लेवल ही रहेगा। हैं सर ओके सर ओके, कैन लोअर योर हैंड। ओके, बंसल फिर से क्वेश्चन है। हाँ सर, एक बात कट रहा है तुम्हारा। ओके, बंसल को नेट इशू। मोहित, वो जो रेगुलर क्लासेस चल रही थी नेटवर्किंग की सर वो कल होंगी? अभी नहीं यार, अभी क्या है, थोड़ा इंटरव्यू वगैरह रह गया तो उसके बाद में देखते हैं वो। हेलो सर।